خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور بریک کے بعد ہماری دو بہنوں نے اور ایک چھوٹے سے مہمان نے ہمیں جوائن کیا. ارم فاطمہ نے. السلام علیکم. مائیکل جی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور جی اور وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. اور ہمارے ساتھ اس وقت جو ہماری آج کی گیسٹ موجود ہیں کسی تعارف کی محتاج تو نہیں, کیونکہ آپ انہیں مختلف جو ہے سوشل ایکٹیویٹیز میں دیکھتے ہیں. سمیرہ شان علی ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہیں پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. سحر رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جزاک اللہ. انہی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے ایک ننھے سے مہمان جو کہ خوبصورت سے نعت خواں ہیں, ذریعہ بطاری, جو کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ پیش کریں گے. جی ذریعہ. شعر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. کہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے, کہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے, جہاں جان لٹانے کو دل چاہتا ہے. وہ شعر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ ننھا سا اصغر جو ایری رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا, وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں, اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں. میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر مدینہ جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. امین ہم چلتے ہیں اپنی بہن کی جانب. جی بالکل. سمیرہ شان علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کے رمضان کس طرح سے جا رہے ہیں, اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے اپنے سفر کا آغاز کس طرح سے کیا. بیسیکلی ایک فیملی ہے آپ کی, ایک چھوٹی سی پاری سی منی بھی ہے آپ کی ماشاءاللہ. کس طرح سے مینیج کرتی ہیں, کس طرح سے جو ہے اپنی سوشل ایکٹیویٹیز کو جو ہے آپ جو سر انجام دیتی ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ سب کا بے حد شکریہ دل سے کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا اور موقع دیا کہ میں اپنی لائف کے بارے میں یا اپنے کام کے بارے میں آپ لوگوں کو یا پوری دنیا کو بتا سکوں. بالکل میں کچھ کر رہی ہوں. جی اور چھوٹی سی بنی کی جس طرح سے آپ نے بات کی ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ انسانی خدمت کا ایک جذبہ ہونا چاہیے. بالکل. وہ جذبہ کا جب نام بھی بتا دیں کیا ہے. سیدہ بطول. سیدہ بطول ماشاءاللہ. تو جب جذبہ آپ کے اندر ہو تو اس کو باہر نکالنا ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے. بالکل بالکل. اور جب ایک بہت ہی پیارے سے شوہر کی سپورٹ ہو تو میرے خیال سے کسی بھی عورت کو آگے بالکل ایسی بات ہے. سب سے پہلے بالکل ایسے ہی ہے ماشاءاللہ. تو یہ چیز ہے. اور جرنی کہاں سے اسٹارٹ کی, لوگوں کو دیکھتے تھے ٹی وی پر کہ بھائی یہ اس طرح کر رہے ہیں, ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. تو کہتے ہیں نا اللہ نے ایک صفت رکھی ہوئی ہے انسان کے اندر, اس صفت کو آپ نے باہر نکالنا ہے, اس کو کس طرح
ह्यूमैनिटी के लिए सर्व करना है आपने, ये आपके अपने हाथ में है। बिल्कुल ऐसा ही है। पॉजिटिविटी अगर आपके अंदर है तो मेरे ख्याल से उस जज्बे को आप बड़े पॉजिटिव तरीके से आगे लेकर चल सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है जिस तरह आप लोग मुझे बड़ा सराहते हैं, बाकी लोग भी बड़ा सराहते हैं, कि मुझे ऐसा लगता है शायद मुझे मज़ीद सीखने की भी ज़रूरत है और मेरी ज़िंदगी सीखने वाली चलती रहेगी और मैं मज़ीद सीखती रहूँगी और अच्छे काम करती रहूँगी इंशाल्लाह। और आप लोग ऐसे ही सराहते रहेंगे मुझे। बिल्कुल ऐसा ही है। इंशाल्लाह, तो माशाल्लाह। आप क्या समझते हैं कि समाजी इदारे जिस तरह से काम कर रहे हैं तो कितना ज़रूरी है कि वो सोशल सेक्टर में मज़ीद बेहतर से बेहतरीन काम करें, और एजुकेशन के हवाले से आप क्या खिदमत सर अंजाम दे रही हैं? एजुकेशन के हवाले से मैं ये बोलना चाहूँगी एज एन एजुकेशनल कंसल्टेंट कि आजकल के बच्चों को जो है ना वो गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे हमारे दौर में जो है वो इतनी फील्ड्स वास्ट में नहीं होती थी कि अगर MBBS करना है, डॉक्टर बनना है, सही। इतनी बड़ी नहीं थी फील्ड्स वगैरह, लेकिन अब बिल्कुल। माशाल्लाह से उन लोगों के लिए सहूलतें हैं। तो उस चीज़ में मैं उनको गाइड करती हूँ कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है, आप कहाँ पे क्या कर सकते हैं, इजीली क्या कर सकते हैं और स्किल बिल्कुल। बेस्ड आप वर्क कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, सही है। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। और जज़ाकल्लाह। अब चलते हैं अपने अगले मेहमान की जानिब। तैयबा, आपके पास उनका सवाल भी था। जी बिल्कुल, हमारे जो अगले मेहमान हैं जी। वो जो कि रीजनल हेड हैं तकाफुल के, माशाल्लाह। तो इनसे ये सवाल करेंगे कि सर आपने अभी तकाफुल के हवाले से हमें बताया कि तकाफुल जो है बेसिकली क्या है क्या नहीं है, कॉन्सेप्ट क्या है, जी। ग्रोथ क्या है पाकिस्तान में बिल्कुल, तकाफुल की, माशाल्लाह। ग्रोथ क्या देखते हैं आप? देखें, जैसा कि मैंने कहा कि कन्वेंशनल जो इंश्योरेंस हमारी है जी, इसकी एज मोर देन 300 ईयर्स है, सही। यस, ठीक। और डेफिनेटली, तकाफुल आपके पास अभी आया 2005 से, यानी 20 साल। पाकिस्तान में 20 साल हुए। बिल्कुल, सही। लेकिन जो अच्छी बात जो है वो ये है कि लोगों को ये चाहते थे लोग कि हमें सेविंग भी करनी है, हमें प्रोटेक्शन भी चाहिए, हमें अच्छा रिटर्न भी चाहिए, सही। लेकिन उनको कोई उनके मुताबिक शरिया कंप्लाइंट मुतबादिल नहीं मिल रहा था। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं आपके चैनल के तवज्जुह से कि पाकिस्तान के अंदर अभी भी इतनी इंश्योरेंस कंपनीज काम कर रही हैं, तकाफुल कंपनीज काम कर रही हैं, लेकिन जो इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन है वो लेस देन 1% है। अच्छा, सही। तो इट मीन्स कि आपके पास पोटेंशियल और कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हम रहते हैं, और हमारी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ये चाहती है कि हम कोई भी काम करें अगर वो शरिया कंप्लाइंट हो तो वो बखुशी करेंगे। सही है, तो लिहाजा जब से ये तकाफुल इंट्रोड्यूस हुई है 2005 से, इसका जो ग्रोथ रेट है कन्वेंशनल के मुकाबले में ये इसका डबल से ज़्यादा है। जी, कन्वेंशनल और इस्लामिक में डिफरेंस क्या है? मैंने बताया था आपको, बताया। कन्वेंशनल जो हमारी रवायती इंश्योरेंस कंपनी होती है जी। कि जिसके अंदर रिस्क ट्रांसफर होता है, सही। उसके अंदर किसी शरिया एडवाइजर की जरूरत नहीं होती, ये ठीक है। कन्वेंशनल इंश्योरेंस है। बिल्कुल सही। बिल्कुल, तकाफुल वो है कि जिसके अंदर एक शरिया एडवाइजर गाइड करता है कि आपने कहाँ इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी invest है, करना है, बिल्कुल कौन सा सही। प्लान आपने देना है, बिल्कुल। और कहाँ किस तरह से इसका रिटर्न आएगा। इसको जो मॉनिटर कर रहा होता है वो शरिया एडवाइजर कर रहा होता है। ठीक सही। है, तो पाकिस्तान में जिस तरह से मैंने बताया कि पाकिस्तान में लोग चाहते हैं कि हम कोई भी काम करें वो शरिया कंप्लाइंट हो, शरीयत के उसूलों के मुताबिक हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बात आपके चैनल से मैं पूरे दुनिया को, पाकिस्तान को बताते हुए मुझे फ़ख्र महसूस हो रहा है बिल्कुल सही। कि जब से इस्लामिक बैंकिंग आई है और जब से इस्लामिक इंश्योरेंस आई है, इन दोनों की जो ग्रोथ रेट है वो कन्वेंशनल बैंकिंग के मुकाबले में और कन्वेंशनल इंश्योरेंस के मुकाबले में तकाफुल के ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है। सही। बिल्कुल, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट एक पैमाना होता है, पैरामीटर, बिल्कुल, उसके मुताबिक हमारी जो तकाफुल की जो ग्रोथ रेट जी, है जी। वो मोर देन 18% है, 18%, सही। बिल्कुल जबकि सही। कन्वेंशनल की जो ग्रोथ रेट है वो 7 to 8% है। सही। तो अब यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि पाकिस्तान में कितना स्कोप है, कितना इसके अंदर जो है वो हमारा जो ग्रोथ तेज़ी से हो रहा है। और बिल्कुल सही कह रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला माशाअल्लाह, जो जज़ाकल्लाह। जी। हुकूमत पाकिस्तान का जो टारगेट ये है कि 2030 तक हम इसको 100% जो है वो इंक्रीज करके लेके जाएंगे। सही, इंशाअल्लाह, बिल्कुल सही। ठीक, माशाल्लाह, Thank you so much, जज़ाकल्लाह। sir, जज़ाकल्लाह। और तैयबा से इंशाल्लाह हमारी कल मुलाकात होगी। तैयबा क्या कहना चाह रही? जी। खूबसूरत सा आज का प्रोग्राम रहा, रहमतों का अशरा ख़त्म हुआ, मग़फ़िरत का अशरा शुरू हुआ। अल्लाह से दुआ है कि इस खूबसूरत से अशरे में हमें अच्छे तरीके से इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमारे वालिदैन की, हमारे आबा व अजदाद की मग़फ़िरत फ़रमाए। और थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छी बातें बताई, नाज़रीन को याद दहाने के लिए बहुत ज़रूरी था कि इस्लामिक और कन्वेंशनल में बेसिकली फ़र्क क्या है। सो मैं तैयबा हमीद मेमन अब आपसे लूँगी इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहे ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।